آپ قرآن کی بات کریے، آپ سے ملت بنائے رکھیں گے، حدیثوں کی بات کریے، آپ سے ملت بنائے رکھیں گے، لیکن اہل حدیث میں اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو امام علی علیہ السلام کی بات نہیں کرنی ہے، امام حسن اور حسین علیہ السلام کی بات نہیں کرنی ہے، یزید کی برائی آپ کو نہیں کرنی ہے، مولا علی علیہ السلام سے یزید کے خاندان نے لڑائی کی وہ بات آپ کو نہیں کرنی ہے، باقی آپ ساری باتیں کیجئے، یہ بات مت کیجئے۔ اہل حدیث کی مجلسوں میں امام علی علیہ السلام مت کہیے، امام علی کی تعریف مت کیجئے، حسن و حسین کی تعریف مت کیجئے، اگر کرو گے تو آپ کو اونچی پوسٹ نہیں مل سکتی، ہو سکتا ہے نیچی بھی نہ ملے، تو جب نیچی نہیں ملے گی تو مجبوری میں نکلنا پڑے گا بھیا۔ بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بھائیو آج ایک ہمارے بھائی نے ہیں جنہوں نے ایک کلپ بھیجا ہے، تو میں نے سوچا وہ کلپ آپ کو بھی دکھاؤں۔ بہت ہی پیارا کلپ ہے اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے یہ مان لیجئے کہ انہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو منافقت میں جا رہی ہے یا کہیے جا چکی ہے، تو کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، تو ایک چھوٹا سا کلپ ہے، سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ شیعہ فرقے کے لوگ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے ایمانی حوصلے اور ہمت کو سلامت رکھے کہ پوری دنیا میں اگر اتحاد کی مثال پیش کر رہے ہیں تو شیعہ حضرات اور شیعہ ممالک کے لوگ ہیں۔ ہماری سنی قوم کے جتنے لوگ جو عیاش ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، وہ خواب غفلت میں مبتلا نہیں بلکہ انہوں نے منافقت کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ جب تک کہ آدیش نہ ملے وہ کسی اور کی طرف ہاتھ اٹھانے کو، آنکھ اٹھانے کو تیار نہیں، نہ مدد کرنے کو تیار ہیں، چھچھلتی زبان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام مجاہدین، لبنان کے مجاہدین، ایران کے مجاہدین اور یمن کے مجاہدین کے اللہ تعالیٰ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ان کی مدد فرمائے اور دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اب یہ باتیں آپ لوگوں نے سنی، اب ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ لگتا ہوگا کہ ہماں اس طرح کی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، اس طرح کے بیان تو آتے رہتے ہیں، لیکن ان میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سنی ہی ہیں، اور ہمارے کچھ سننے والے جو کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ سنی جو ہے اہل حدیث کو کیوں کہتے ہو اور دیوبند کو سنی کیوں کہتے ہو، سنی تو صرف بریلوی ہیں، تو آج آپ دیکھیے مولانا صاحب کی بات، یہ سنی کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اور نشانہ کہاں ہے؟ سعودی عرب کے ملکوں پر۔ تو ان کو بھی معلوم ہے کہ جو عرب ملک ہیں وہ سنی ہی ہیں، شیعہ ملک ایران ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے چند دیش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سنیوں کے اندر منافقت آ گئی ہے، سب چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ میری باتوں کو سنیے، اگر آپ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی ہیں تو بھائی میری باتوں کا جواب آپ نہیں دے پاؤ گے، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں نہیں دے پاؤ گے۔ کچھ ایسی باتیں میں رکھوں گا، آپ سنیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ مان کر بتائیے کہ میں صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے شیعہ حضرات جو ہیں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، سنی جو ہیں منافقت میں ڈوب گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فلسطین میں جو لڑائی چل رہی ہے تو اس لڑائی میں جو ایک ابھی لیڈر مارے گئے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے تھے اور اب شہید ہوئے ہیں، تو ان کی موت پر سعودی عرب میں جشن منایا گیا ہے۔ یہ کچھ پوسٹ ہیں جو عربی میں ہیں، ان کو میں نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، تو عربی بھی دیکھیے اور ہندی بھی دیکھیے۔ کل ملا کر ان پوسٹوں کا مطلب یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو کافی مزہ آیا ہے، جو مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے تھے وہ شہید ہوئے ہیں، تو سعودی میں کچھ لوگوں کو مزہ آیا ہے۔ یہ کون ہے جن کو مزہ آیا ہے؟ یہ کون ہے بھیا؟ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ سنی ہی ہیں۔ ہاں اب یہ کوئی کہے گا کہ نہیں وہ اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کہو، دیوبندی کہو، بریلوی کہو، کہ جب وشو لیول کی بات آئے گی تو سبھی سنی ہی مانے جائیں گے۔ مسلمانوں میں بھاری گروہ دو ہی ہیں، شیعہ اور سنی۔ تو پتہ چلا ایران جو ہے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جان مال سے لگا ہوا ہے۔ سنی حضرات یا سنی ملک کہیے، وہ لوگ ساتھ دینے کے بجائے بھیا مزے لے رہے ہیں۔ تو میں تمام سنی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سنیوں کی بہت سی باتیں پسند اسی لیے نہیں آتی،
तो अब मैंने जो कहा था कि मैं कुछ सवाल रखूँगा, तो वो सवाल सुनिए और आप भी सोचिए, जवाब दीजिए। कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि अगर मैं बरेलवी में चला जाऊँ और इसी तरह की बातें करूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो हमको अपने में मिला लेंगे? नहीं मिलाएंगे। उनके में मैं तब मिलूँगा जब मैं नारा लगाऊँ, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जो कि अभी तकरीबन 50-60 सालों से लगना शुरू हुआ है। इस्लाम की तालीम में इस नारे का कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ये नारे लगा रही है। और ये भी नारा खूब लगाया जाता है, या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद। अगर मैं ये नारे लगाऊं तो मुझे बरेलवी अपने अंदर लेंगे। अब आप सबको मालूम है कि दुआ में किसी को पुकारना ये इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया मैं या गौस अल मदद नहीं कह पाऊँगा। ये जो नए नए नारे लगाए जाते हैं, मुझसे कहो लगाओ, तो मेरी समझ में नहीं आता है भाई। इन नारों का और कुरान और हदीस की तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपना फ़िरका उठाने के लिए इस तरह के नारे स्टार्ट कर दिए हैं। तो भैया जब मैं इस तरह के नारे लगाऊंगा नहीं, तो वो मुझे अपने में लेंगे नहीं, ठीक है। अब वो देवबंदी भाइयों में आते हैं, भाई ही हैं भाई, समझने समझाने की बात हो रही है, बाकी कोई दिली रंजिश नहीं है। जहाँ पर कमी है वो बात की जाती है। देवबंदी भाइयों में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे जमात वाले जो भाई हैं, तो ये जमात जाते हैं या कहीं मजलिस करते हैं या कहीं पर जोड़ होता है, तो जितने बड़े बड़े आलिम दीन हैं या छोटे आलिम दीन हों, जो लोग खिताब करते हैं, तो वो सभी ये बात कहते हैं कि हम लोग दीन में मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा आ जाए। आप किसी भी मजलिस में जाइए, हर मजलिस में ये बात आपको सुनाई ज़रूर देगी कि हम लोग तबलीग इसी की कर रहे हैं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा आ जाए। बात तो बिल्कुल सही है भाई, तरीक़ा आ जाए, इस पर अगर मेहनत हो रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैं लगभग 35-40 साल का हो गया हूँ, ठीक है। पिछले 10-15 सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा आ जाए, बस मुसलसल यही बात हो रही है। अब मेरे अंदर सवाल पैदा होता है कि भाई किस तरह तरीक़ा आ जाए? क्या आप अलैहिस्सलाम की तालीम मौलवियों के मुंह में है या किताबों में है? माना कि बहुत से आलिम दीन को ज़बानी याद है, लेकिन हर किसी को तो नहीं याद है। अब अगर किसी को ज़बानी याद भी है तो उनको ये चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम जैसे किसी मसले में क्या फरमा रहे हैं, तो उनको वो हदीस बयान करनी चाहिए। तब उम्मत को एतमाद ज़्यादा होगा, लोग यकीन करेंगे। अब अगर कोई सवाल कर दे कि सर आप अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर आप लोगों को बुला रहे हो, तो आप अलैहिस्सलाम की तालीम तो बुखारी मुस्लिम में है, कुतुब सित्ता में है, तो क्या आपके दर्स में सही बुखारी सही मुस्लिम शामिल है? तो आपके ऊपर आंखें तान कर देखेंगे, आपसे गुस्सा करेंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या मसला आया भाई? आप दावत देते हो आप अलैहिस्सलाम के तरीक़े की, और आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा जिन किताबों में है, अगर कोई उन किताबों की बात करता है तो आप उससे गुस्सा करते हो। ये क्या मसला है? ये एक अहम पॉइंट है जो हमारे देवबंदी हजरात में पाया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम की बात तो करते हैं, लेकिन सही बुखारी सही मुस्लिम अक्सर आलिम दीन पढ़ते ही नहीं हैं, और जब पढ़ते नहीं हैं तो उनकी पब्लिक जानेगी कैसे? अगर आप कुछ हदीसों को उनके पास लेकर पहुंच भी जाओ, तो अगर आप अकेले दुकेले हुए तो हो सकता है आपसे झगड़ा करके आपको भगा भी ना दें। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, आप चाहो तो आप भी आजमा के देख लो। पता ये चला कि हम मुंह से कहते हैं आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर सब लोग चलो, लेकिन किताब में वही पढ़ो जो हमारे बुजुर्ग हमको दे के गए। तो मुंह से कहा जाता है अपने नबी की तालीम पर, लेकिन लाया जाता है अपने बुजुर्गों की तालीम पर।
वही जो किताबें दी गई हैं उन्हीं से दर्स होता है, बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं जाती है। अल्लाह गवाह है, मैंने दर्जनों मस्जिदें देखी हैं, ढूंढा है उनमें, लेकिन हदीस की किताबें हमको नहीं मिली हैं। और भी छोटे छोटे कई मसले हैं, जो मसला मेरे समझ में आया भी वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए अहले हदीस की तरफ आते हैं। अहले हदीस वाले जो हैं, तो खैर ये बात सही है कि कुरान और हदीस की बात करते हैं, नमाज भी सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं, ये बात सही है। जो सही है तो उसके बारे में मैं किसी का दिल नहीं जलाऊंगा, सुन्नत के करीब है उनकी नमाज। अब अहले हदीस में क्या चल रहा है पिछले 50-60 सालों से, उससे पहले के जो अहले हदीस थे वो ऐसे नहीं थे, वो थोड़ा सा बदले हुए अहले हदीस थे, या कहिए कि वो सही थे, इस दौर के जो हैं ये थोड़ा बदले हुए हैं। आप कुरान की बात करिए, आपसे मिल्लत बनाए रखेंगे, हदीसों की बात करिए, आपसे मिल्लत बनाए रखेंगे। लेकिन अहले हदीस में अगर आपको रहना है तो आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं करनी है, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बात नहीं करनी है, यजीद की बुराई आपको नहीं करनी है, मौला अली अलैहिस्सलाम से यजीद के ख़ानदान ने लड़ाई की वो बात आपको नहीं करनी है। बाकी आप सारी बातें कीजिए, ये बात मत कीजिए। अहले हदीस की मजलिसों में इमाम अली अलैहिस्सलाम मत कहिए, इमाम अली की तारीफ़ मत कीजिए, हसन और हुसैन की तारीफ़ मत कीजिए। अगर करोगे तो आपको ऊंची पोस्ट नहीं मिल सकती, हो सकता है नीची भी ना मिले। तो जब नीची नहीं मिलेगी तो मजबूरी में निकलना पड़ेगा भैया। ये मसला है, और ये मैं जज्बाती तौर पर नहीं कहता हूँ भैया, ये मैंने देखा है, और आप चाहो तो खुद भी चेक कर लो भाई। बहुत से अहले हदीस के आलिम दीन कहते हैं कि हम लोग कुरान और हदीस वाले हैं, तो उनसे कहो कि अपनी मजलिस में 2812 नंबर सही बुखारी की हदीस बयान करके दिखाएं। नहीं दिखा सकते, जबकि सही बुखारी में है। अब सही बुखारी से भी कोई ऊंची हदीस है भाई क्या? तो पता चला कि हदीस की तो बात करते हैं, वो हदीसें जो मसलक में फिट बैठ रही हैं उन पर बात करते हैं, और जो हदीसें उनके मसलक से थोड़ा सा हट रही हैं उन हदीसों को ना तो बयान करेंगे, अगर आप पूछोगे तो आपसे लड़ाई का भी अंदेशा रहेगा। पता ये चला कि 3 फिरकों की तीनों बातें मैंने बता दी। या तो आप मसलक आला हज़रत का नारा लगाओ, या फिर जो हमारे देवबंदी हजरात हैं, या फिर जो वो कहते हैं उनकी किताबों के ऊपर अमल करो, या फिर अहले हदीस जो अहले बैत की तारीफ़ नहीं करते हैं। तो अब मसला बहुत अहम है, अहले बैत को छोड़ नहीं सकता, सीधी सी बात है, जान रहे चाहे चली जाए, कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, अहले बैत को मैं नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि जिन हदीसों का आप दावा करते हो उन्हीं हदीसों में हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है भैया कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। तो भैया क्लियर है, मैं मोहब्बत करूँगा, उनकी बातें करूँगा, आप मुझे अपने में लो या ना लो, कोई बात ना है। जब तक जिंदा हूँ अल्लाह ने चाहा तो खुद हाथ पाँव डोला के काम करूँगा, जब मर जाऊँगा तो अब आपके हवाले है, चाहो तो मुझे दफनाओ, चाहो तो पड़ा रहने दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये मसला है। तो ये बातें हैं हमारे सुन्नी फिरकों में। अब आप बताइए कि किस में जाऊं भाई मैं? तो मैंने झांक कर देख लिया है, मुलाकात करके देख ली है, लेकिन बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि बड़ी तादाद जो है वो फ़िरके को छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुमराही है, तो क्यों जाऊं उसमें भाई मैं? अब अगर किसी को सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच्चा मुसलमान बनकर मरना है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े और कुरान हदीस के मुताबिक अमल करे। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले मुस्लिम होते हैं। जो इन चीज़ों से मुंह फेरते हैं वो अल्लाह के नज़दीक इनकारी होते हैं। दुनिया में भले ही वो मुसलमान की ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो इनकारी हैं,
उनको अजाब ज़रूर मिलेगा। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुरान हदीस के मुताबिक चलना चाहें, उनके लिए भी अल्लाह ने हिसाब किताब बना के रखा है। जो पढ़े नहीं हैं तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले लोगों की सलाह में रहें, उनकी राय पर चलें, इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे। अब आप कहोगे कि कुरान हदीस का दावा तो सभी करते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कौन कुरान हदीस के मुताबिक है और कौन नहीं है? तो भैया, आप बहुत सारे आलिमों की बातें सुनते हो, उन बहुत सारे आलिमों में कोई ना कोई तो ऐसा आलिम दीन होगा जिसकी बातें आपके दिल में उतरती होंगी कि हाँ, ये आदमी जो है बातें थोड़ा मजबूत करता है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ भाई, आप सैकड़ों आलिमों को सुनते हो, उनमें से कोई तो होगा जिसकी बात आपके दिल को छूती होगी। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।